Dubai, world's most aggressive market in real estate, right? And everyone wants to get a piece of it. ऐसा क्यों है? क्या है दुबई में? आज हम ये देखेंगे कि क्यों आपको ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए. There were investors who were ready to invest multiple crores of rupees, right? But they were not ready to invest in the approved projects or unapproved projects in India. And few of you very clearly said, do you have any projects overseas, right? And to answer all those questions, I am here today. आज मैं अदर देन इंडिया बात करूंगा, मैं भारत के बारे में बात कम से कम करूंगा, बट आई टॉक अबाउट दुबई स्पेसिफिकली. तो आज के वीडियो का एजेंडा बहुत क्लियर है. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वजिंदर शर्मा, फाउंडर की स्क्वायर. आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ क्यों सपनों का शहर दुबई, क्यों 80 के दशक में जिस शहर में रेगिस्तान था, रेत थी, ऊंट चलते थे, टेंट लगे होते थे, आज की डेट में वहां पे दुनिया का हर एक इन्वेस्टर, हर एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वहां पे रहना चाहता है या घर बनाना चाहता है या इन्वेस्टमेंट करना चाहता है. ऐसा क्यों है? क्या है इस शहर में? क्यों है इस सपनों का शहर? ठीक है, सब कुछ देखेंगे. We will talk about how, when, why, who and where to invest in Dubai. Okay, so this video should act as a guide for all of you who are thinking to invest in Dubai, who have never been to Dubai or who were there in Dubai for leisure on trip but never thought of investing there. Okay, तो हम देखेंगे कैसे इन्वेस्टमेंट के एंगल से अच्छी मार्केट है या बुरी मार्केट है. क्या एक इंडियन को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या कभी हमें ये सोचना भी चाहिए कि हम दुबई जाके रहेंगे? Because see, guys, I was there in the last 5 days in Dubai and I saw there are many individuals, there are many Indians who are living there in Dubai, okay, and they are living peacefully. But that's not the answer for you. We will answer all those questions starting with why, then what, then where, how and how much to invest in Dubai. Okay, so हम legally हर चीज check करेंगे. Let's go to our PPT. That's our style. We all know that. Okay, so guys, though majority of the questions will be answered about Dubai in this video, still you have few more doubts, questions, and you want to deep dive for Dubai specifically, and you want me to create a specific investment strategy for you for Dubai and help you double, triple your investment or help you get the maximum rental, go ahead and fill the form mentioned in the description. That form might give you a chance to talk to me face to face over a video call as well. Now let's go back to PPT, and one very important question I will answer is, आप कैसे बिना दुबई आए भी दुबई में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ठीक है, that's another thing that you can get the answer from me in this video. In the next slide we'll talk about what Dubai is. Okay, दुबई सिर्फ एक सिटी नहीं है guys, understand that. It is a dream, right? It's impossible to possible की जर्नी. 80 के दशक में मैंने बताया था यहाँ पे रेगिस्तान था और आज बुर्ज खलीफा है, बुर्ज अरब है, दुनिया का सबसे बड़ा 7-star होटल यहाँ पे है. तो one line I will mention for them is, जो ये विजन बनाते हैं ना, ये पूरा करते हैं. They simply don't promise, they deliver on the promises multiple times. The philosophy that they follow is limitless growth with trust. इसीलिए दुबई को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कैपिटल बनाया है. So see from my eyes, I call Dubai as a pixel perfect beauty. This one is Burj Al Arab. It's a 7-star hotel right at the ocean. It's a man-made island, okay, and it's the first of its kind in the water, right? Next, we'll talk about what Dubai is. Now look at this map carefully, guys. This entire map put together is UAE, United Arab Emirates. United Arab Emirates. तो Emirates क्या है? Emirates होता है cities. जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग शहर हैं, अलग अलग states हैं, अलग अलग cities हैं, इसी तरीके से UAE में Emirates बोला जाता है. Now, for the simplicity sake, guys, I have mentioned I have mentioned that in the next slide as well. But for you, Abu Dhabi is 80% of the entire UAE, और majority of that is Registan. पूरा रेत है अभी यहाँ पे. Development is very less there. Okay, now let's go to the next slide. यहाँ पे मैंने बता दिया clearly आपको कि Emirates कौन-कौन से हैं. You can see them for yourself if you are not able to find on the map. Now next we will talk about the 5 pillars of Dubai success. See, it's why. I'm answering the 5 whys. There are many whys. Out of many, I've just chosen 5 to answer you. कि दुबई में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, दुबई हमारी नेक्स्ट चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों होनी चाहिए. ठीक है, तो इनको 1 by 1 डिकोड करते हैं. पहला है ट्रांसपेरेंसी. एवरी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन दुबई, ओके, और बहुत क्लियरली वो सबको विजिबल होती है. आई विल शो यू कैसे दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन बनाई है जो एनीवन कैन एक्सेस अक्रॉस द ग्लोब, राइट? इवन इफ यू आर इन्वेस्टर और नॉट इन्वेस्टर, यू गेट द एक्सेस. देन नेक्स्ट इज टैक्स फ्रीडम. योर इनकम इन दुबई, income earned in Dubai is not taxable. It's 0% tax there. That's the attraction point for many of the investors. The second point here is, even if you're not an individual, you are a corporate, you get only 9% to pay. I'll discuss in detail in the next slides. So Dubai में, so UAE में top 3 cities ऐसी हैं जो विश्व की top 10 cities में आती हैं in terms of safety.
right? Next we'll talk about global business, global accessibility. ये business कैसे होता है आपकी accessibility से? आप टू एंड फ्रो ट्रैवल कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हो, देयर आर मेनी थिंग दैट यू कैन पिक। लेट्स से आप काम कर रहे हो लंदन में या काम कर रहे हो इंडिया में, 4 घंटे फ्लाइट पकड़ो, पहुंच जाओ दुबई। सुबह से लेकर रात तक आप वापस आ सकते हो। सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे की फ्लाइट पकड़ते हो और रात को 12 बजे आप वापस इंडिया लैंड कर सकते हो। दिस इज हाउ इजी इट इज टू डू बिजनेस इन दुबई, राइट? सो इट्स लाइक 1/3 of population of the globe is connected with Dubai in less than 4 hours of time. Okay. The next is high returns. So 10 to 12% annual return rental yield is going on as of now at the moment. Okay, let's go next. So I'll decode one by one each of the pointers. Transparency. ट्रांसपेरेंसी की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो यहाँ इंडिया में भी है, आज की डेट में हर स्टेट में रेगुलेट हो रहा है, दैट्स रेरा, RERA, द रियल एस्टेट रेगुलेटरी एजेंसी। सेम ये नाम हर जगह सेम है। देन इसी डिपार्टमेंट का एक पहला पुराना नाम हुआ करता था, उसको बोलते थे लैंड डिपार्टमेंट। तो आज की डेट में अगर आप सिंपल भाषा में समझिए, लैंड डिपार्टमेंट एंड रेरा are one department only. They are not two different departments. Okay. Now, what is their duty? Their duty is to ensure all rights of the buyers and sellers are intact. Okay, and developments and transactions of all real estates are captured in detail. Okay, let's see next. Next is Dubai Rest, Dubai Development Authority and Land Department we just spoke about. Dubai Rest क्या है? ध्यान से समझिएगा. It's an application based. It's an app that can be installed on your phone. ये करती क्या है? It will tell you the digital transactions, ownership details, real time property data. तो डेवलपर क्या कर रहा है? डेवलपर को मैंडेटरी है to put all its real time data on the website on a very regular basis. It's less than a week. And like some developers are so fast, they are uploading the data every day as well. So आपका ट्रांजेक्शन, आपका इन्वेस्टमेंट जो भी आप जहां भी करा है, आप डेली बेसिस पे उसकी अपडेट या वीकली बेसिस पे उसकी अपडेट इस ऐप में जाके देख सकते हैं। तो आपके पास आपको धोखा नहीं हुआ था। ट्रांसपेरेंसी इज यूज्ड। Second is Dubai Development Authority. इनका काम क्या है? Access to property sales, mortgage data and market insights. Right, you get all of it. Then the RERA department and land department we talk about master plan insight. यानी पूरा master plan 2040 2075 तक इन्होंने बना दिया है। 2000 I think 2070 तक it's already ready. Land use क्या है? Zoning for freehold and leasehold area. So these are the things that land department does. Right. So look at the kind of transparency they give. And I think such departments exist across the world as well. But then this type of transparency that Dubai provides, I don't think so. I don't think so any other country has reached there. Okay, correct me if I'm wrong in the comment box, guys. The next is the safety and security. So look at yourself. UAE is the safest country in the world. You can Google it and check it. The fact of the matter is 98.5% women reported feeling secured while living and working in Dubai. See, I am a clear evident of it. I saw it myself. लोग यहाँ पे रात को 1-2 बजे 3 बजे तक पार्टीज भी करते हैं, काम भी करते हैं, राइट, विद नो थॉट प्रोसेस कि नहीं यार मैं सेफ नहीं हूँ, मैं घर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, राइट? पीपल आर रियली हैप्पी देयर। ओके, नेक्स्ट हियर इज द टैक्सेबिलिटी। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द इंडियन स्टैंड पॉइंट। टैक्सेबिलिटी हमें पता है यहाँ पे टैक्स क्या है, फॉरगेट अबाउट दैट फॉर नाउ। दुबई में पर्सनल लायबिलिटी ऑन टैक्स इज 0. Whatever you earn, you don't pay a single rupee until you convert yourself into a corporate. Let's say you are opening a firm there, you are opening an LLC, LLP, आप कोई कंपनी खोल रहे हो, यहाँ आपने प्रोप्राइटरशिप भी ले लिया है, still then you get to pay 9% flat tax, but after attaining a income of 3,75,000 AED dirham, जब तक आप नहीं करते हो तब तक आपका जीरो टैक्सेबल है, तब तक ही आपकी इनकम पे टैक्स जीरो लगेगा, यानी 90 लाख रुपए जब तक आप अर्न नहीं करते। So think about it. दुबई चाहता है, दुबई के जो किंग है वो चाहते हैं कि आप लोग पैसा कमाएं, आप पैसा कमाएं अप टू अ लेवल, यू शुड रीच इट, एंड आफ्टर दैट मे बी यू आर टैक्सेबल, राइट? सो दिस इज वेरी फेयर पॉइंट, राइट? द नेक्स्ट इज व्हाई शुड यू डू बिजनेस का आंसर एक और है, लोकेशन एंड बिजनेस मॉडल। वी टच बेस लिटिल अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। दुबई इज वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। दुबई 8 घंटे दूर है 2/3 ऑफ द वर्ल्ड से, और सिर्फ 4 घंटे दूर है 1/3 ऑफ द वर्ल्ड से, राइट? मैं यहाँ से सुबह से जाके अगर दोपहर तक तो यहाँ शाम तक वापस आ सकता हूँ बाय सिंपली लुकिंग एट माय प्रॉपर्टी। लेट्स से टुमारो यू वांट टू गो अहेड एंड विजिट दुबई's प्रॉपर्टी, आप अपनी प्रॉपर्टी देखना चाहते हो या आप प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल वी स्पोक अबाउट इट और हमने वीडियो कॉल पे प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करी और हमने देख के आनी है। ऑल दैट आई नीड इज 1 डे फ्रॉम यू। इफ यू आर नॉट टायर्ड देन मैक्सिमम 2। आज सुबह बैठो फ्लाइट पे, रात तक वापस आ सकते हो, क्या करिए, अर्ली मॉर्निंग वापस आ जाओ, सी द प्रॉपर्टी और डू आवर बिजनेस व्हाटएवर वी वांट टू डू इट एंड वी कैन कम बैक। नाउ ऑन a few facts that I mentioned here is over 100 airlines connect to Dubai for more than 240 destinations globally. That's major data. Then more than 150 shipping lanes and 90 weekly services that are happening, right, with Dubai.
The next is very very important data with regard to why we should invest in Dubai is the tourism. Look at that carefully, guys. एक fun fact बताऊं, 40 लाख दुबई की आबादी है और दुबई में लोग कितने विजिट करते हैं, राइट वाले आप ग्राफ पे देखेंगे 18.72 मिलियन लोगों ने सिर्फ 2024 में ट्रैवल किया और देखो 2017 से लेकर 2024 का डेटा दिया रखा है। इसी तरीके से अगर आप उनका रेवेन्यू देखेंगे, हाउ मच रेवेन्यू दे आर गेटिंग फ्रॉम टूरिज्म, सो दे आर प्रमोटिंग टूरिज्म एवरी डे क्रेजीली। 2022 में इनके पास टोटल इंटरनेशनल वेंडर विजिटर आते थे, वो स्पेंड करते थे 8117.6 बिलियन, दैट्स द दरम। नाउ लुक एट दैट इन 2024, 660 बिलियन दरम equal to 179.8 billion dollars, guys. So this is the kind of growth that they're thinking. अब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है which I answered in the slide as well. Think about it. आप विजिटर हो, आपको क्या चाहिए? आप टूरिस्ट हो, आपको क्या चाहिए? आपको सेफ्टी चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए और आपको रहने के लिए जगह चाहिए for the time you're there. So that's how the Airbnb piece of it. That's how the hotel piece of it. That's how the hostel, restaurants, hotels सब डबल डिजिट ग्रोथ दे रहे हैं। ये इसी वजह से दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बहुत सिंपल है ना यार, अगर आप जाओगे तभी तो रहोगे। और ट्रैवल को टूरिज्म को जितना ही प्रमोट कर रहा है, आई डोंट थिंक सो एनी ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड आर प्रमोट करेगा। द नेक्स्ट पॉइंट आई कैन बैट ऑन दैट, अ वेरी फ्यू ऑफ यू वुड नो, दैट्स कॉल्ड दुबई रीफ। नाउ दुबई रीफ अपने आप में एक बहुत शानदार एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है जिसकी डिलीवरी डेट 3 साल में है। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ 72 किलोमीटर कोस्टल प्रोजेक्ट, ओके, where they will be planting 100 million trees. King is thinking very, very high. His Highness knows it very well, the value of green, the value of the human life. And that's how this project is coming into the picture. And this is not aspirational simply now. This is happening on ground at the moment. Okay, wait for 3 years, you'll see the green across Dubai. Now the next here is the COVID impact. Guys, at the time of COVID, हमारे पास टोटल कंपनीज इन दुबई वर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वर 4,05,000 कंपनी। Now this digit is doubled over the course of next 5 years only. तो लोग अपनी कंपनीज को वहां रजिस्टर करा रहे हैं। Look at that, it's mentioned very clearly. Over the past 4 years, this number has grown to 1012 million, not just double, guys. It's I think 3 times almost. And next is scoring a growth of 152% according to the statistics of UAE's National Economic Register. So nothing in so nothing hi-fi, guys. It's mentioned very clearly, it's concrete. Now next here is the business growth. Again, this is a subset of the same slide that we just saw. Okay, ये 2025 के first 6 months की बात कर रहा हूँ, यानी half H1 is equal to half of the 6 month of 2025, यानी कि जनवरी से लेकर जून तक. So these are the people who are doing business with them multiple times. Okay, and then certificates of origin issued किए इन्होंने 10% year on year growth हो गई उससे. Then local companies extended internationally with the chamber support. So guys, it's not only one side of the story. सिर्फ लोग दुबई की तरफ नहीं आ रहे, दुबई भी अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। दुबई की कंपनीज भी अक्रॉस द ग्लोब एक्सपेंड कर रही है। 76% कंपनीज जो ईयर इन ग्रोथ दिखाया हुआ है, वो कंपनी इंटरनेशनली 60 ऐसी लोकल कंपनीज है जो एक्सपेंड हो चुकी है इंटरनेशनली। नाउ दिस इज 76% ईयर इन ग्रोथ। इट मींस शुरू में लोगों की कंजर्वेटिव अप्रोच थी, दे वर नॉट गोइंग आउट ऑफ दुबई, और नाउ दुबई वाली कंपनीज भी पूरे विश्व में अपने अपने ऑफिसेस खोल रही है। ठीक है, द नेक्स्ट अनदर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? लेट्स सी। देखो, डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता है। ठीक है, डिमांड होती है, सप्लाई होती है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? तो हमने भी देखा था 40 लाख की पॉपुलेशन में आपके पास 18.72 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू नाउ, दे आर वर्किंग ऑन increasing the population. Now guys, there are 2 ways to do that. Now there are 2 ways to do that. We'll see that one by one. Let's go back to PPT again. Dubai aims to reach the population of 7.8 million by 2040. That's how far they are thinking about it. Now how will they do that? The movement of experts here and many third generation families living here. तो expat मतलब आप मेरे जैसे लोग, हम लोग वहाँ घूमने जाते हैं और हमें अच्छा लगता है कि यार एक तो टैक्स बच रहा है और दूसरा अपना बिजनेस ग्रो हो रहा है, लिविंग स्टाइल इज अमेजिंग देयर. That's how what we do is we start to think about living there. It's not just investment, you can think about the end user case of it as well. Alright, another thing here is it's very very important, and I'm sure majority of you would know, is the new airport. Now they already, mind guys, they already have a airport operational there. Okay, जो पुराना airport है, जो JLT I guess JLT के पास है,
तो पुराना एयरपोर्ट जहां से मैंने अभी ट्रैवल किया था वो एयरपोर्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, बट उन्होंने एक नया एयरपोर्ट बना रहे हैं जिसका नाम है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ओके, now this airport is the world's largest airport in Dubai. That is their aim. Phase 1 already operational है, so few of the flights are traveling from here. यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि दुबई ने ग्रोथ की कैसे, how does all of that work. तो एक मैं छोटी सी टाइमलाइन है, I'll play that out on the video and I'll hide my video. Just see for yourself कैसे दुबई 1948 से लेके अब तक है. इट्स गूगल अर्थ, सोर्स इज गूगल अर्थ. आप गूगल कर सकते हो earth.google.com पे जाके दुबई डालेंगे, इंडिया पे डालेंगे, सब जगह दिख सकता है. तो दैट्स वेयर आई गॉट दैट वीडियो फ्रॉम. जस्ट हैव अ लुक एट इट. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो व्हिच टेल्स यू a lot of things that none of us can see. I am playing it for you. Let me know if it's played. Did you see that? What has happened here? एक रेगिस्तान था, धीरे धीरे रेगिस्तान क्या बन जा रहा. That's the beauty. Now let me come back to the video again. Alright. Now another important concept is rental yield. So ये अब इन्वेस्टमेंट स्टैंडपॉइंट पे आ गया. हाई रिटर्न की हमने बात की थी, राइट? दिस इज द फिफ्थ वाई आई गेस. फिफ्थ वाई को अब हम आंसर करेंगे, which is high return. So this is a list of the cities, the majority of the best cities in the world where people would want to go and live, and of course they think to invest. Dubai is giving the average rental yield 5 to 9%. तो देखो आप पेरिस, सिडनी कहीं स्टैंड नहीं करे, आधे पे पहुंच रहे हैं सब लोग. लंदन भी 4% दे रहा है हमें, जहाँ पे आपका एवरेज टिकट साइज इज वेरी वेरी हाई, राइट? दुबई एवरेज टिकट साइज इज एज गुड एज करंटली दिल्ली एनसीआर, मुंबई, हमारी मेट्रोपॉलिटन जितनी भी सिटीज है वहां के हिसाब से बराबर है. और रिटर्न सीट फॉर योरसेल्फ. स्टिल सप्लाई ऑफ रियल एस्टेट इज 40% लेस देन एक्चुअल डिमांड. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ इफ यू इन्वेस्ट इन दुबई, यू इन्वेस्ट इन डॉलर प्लेज करेंसी. अपना अगर हम बात करें आजादी के टाइम पे भारत का 1 रुपया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डोंट जज मी हियर, आई थिंक द रुपी एंड डॉलर वर इक्वल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन मेंशन द राइट फिगर, बट अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अब आज की डेट में क्या फर्क है, डिफरेंस आप देख रहे हो, 1 रुपया इज इक्वल टू 90 रुपए से ऊपर जा चुका है, ठीक है ना? तो दैट्स द फ्लक्चुएशन. सो दैट इज हाउ द रुपी इज वीकर देन द डॉलर. नाउ दरम ने क्या करा कि भैया मेरा $1 इज इक्वल टू 3.67 दरम, दैट्स फिक्स्ड. आप करोड़ डॉलर डाल दो, $1000 डाल दो, $1000 डाल दो, रुपीस डाल दो, कुछ भी करेंसी में डाल दो, तो यू गॉट योर इन्वेस्टमेंट प्लेज्ड. आपकी करेंसी फिक्स होगी, आपको इंपैक्ट नहीं पड़ेगा फ्लक्चुएशन. Very important point. Those who understand the currency index and currency fluctuation will understand my point. मेरा मैसेज डिलीवर हो गया होगा उनके पास, ठीक है जी. अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना वीजा लेना बहुत आसान है. There are multiple types of visa that you can go and enjoy yourself. The tourist visa, the transit visa. But I would want to take your concentration on the golden visa. So this is a 10-year visa, guys. It is specifically for the investors, entrepreneurs, skilled professionals. 10 साल का visa, it's a golden visa that has multiple benefits for you to invest in Dubai, okay, for you to stay in Dubai. Even if you don't want to, you can still invest in Dubai without even being there. That's another piece. ठीक है जी, तो ये हम समझ गए. अब why क्लियर है सबको? I guess the why is super clear with everyone now. Now let's go to the next aspect, that is how. Okay, now we'll talk about how. अब इन्वेस्टमेंट करनी कैसे? पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भैया ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो आपके लिए बेहतर है. राइट, दुबई में क्या क्या चीजें होती है? डू वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? डू वी हैव करंट रेजिडेंशियल? डू वी हैव द स्टूडियो अपार्टमेंट्स? और डू वी हैव कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स? ऑल दोस थिंग्स विल टॉक वन बाय वन. तो किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स है अभी देखते हैं. द फर्स्ट, आई थिंक देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. वी गॉट 1 BHK, 2 BHK, 3, 4 BHK is there. Okay, these are the apartments that we talk about, similar to India. And then we have office spaces. We've got villas, we've got townhouses, retail shops, होटल अपार्टमेंट्स, लैंड है, प्लॉट भी है, ठीक है. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. भाई मान गए दुबई में सब कुछ. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. भाई मान गए दुबई में सब कुछ है भाई, लेकिन मुझे पैसा कितना लगाना है? व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट दैट आई कैन थिंक अबाउट व्हेन आई वांट टू इन्वेस्ट इन दुबई? गाइस, आई एम श्योर यू ऑल विल बी सरप्राइज्ड टू सी द नंबर दैट आई विल पुट अक्रॉस राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू.
Any guesses? If you have any guesses, please put down in the comment box as well. Right? Let me reveal that for you. Okay. That number is 1.50 Indian rupees. अगर आपके पास 1.5 करोड़ इंडियन रुपीज है एंड इफ यू रेडी टू इन्वेस्ट इन दुबई, दैट्स योर चांस. ओके, आपको इससे ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है. दैट्स द मिनिमम इन्वेस्टमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट. But if you want to go bigger, you want to earn more, you want to get more rental yield, you want to get more appreciation, of course the options are huge. Now 1.50 में बहुत selected builders हैं. आज की डेट में एक अमाउंट थोड़ा सा क्रॉस हो गया. बहुत selected builders हैं, अच्छे builders I'm talking about, जो अभी भी इतने में आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं. एटलीस्ट यू गेट अ 1 BHK देयर और स्टूडियो अपार्टमेंट. राइट नाउ व्हाट डू दे नीड? चलो मेरे को पता लग गया 1.5 करोड़ मेरा लगेगा. ठीक है, 1.5 करोड़ से लेके मल्टीपल करोड़ आई कैन गो टू हाउएवर मेनी अमाउंट आई कैन गो अप टू. So but what do they need? मुझे कितने पेपर वर्क देने पड़ेंगे? मैं तो पागल हो जाऊंगा. It's a lot of hassle that is there. Guys, here's the news for you. The news is all that you need is a passport copy, not even an original passport. How many of you are surprised to see that? उनको आपके पासपोर्ट की एक कॉपी चाहिए और उस पासपोर्ट की कॉपी को सिर्फ इस वजह से उनको चाहिए कि उनको आपको देखना है कि आप ऑथेंटिक हो, आप एक पर्टिकुलर कंट्री के रेजिडेंट हो भी या नहीं. अगर आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट की कॉपी है, वैलिड पासपोर्ट है ऑफ कोर्स, then you need to send a passport copy through me or through the authorized channel partner whosoever is there. Right, select the property, send the money along with the passport copy and you're done. Rest they will take care of it. Right, so this is how the allotment of the property works. पासपोर्ट है तो इन्वेस्टमेंट है, अगर पासपोर्ट नहीं है तो दुबई में इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते. बहुत क्लियर है. तो जिसके भी नाम पे आप करना चाहो उसके पास एक पासपोर्ट होना बहुत बहुत मैंडेटरी है. अब एक अनदर चीज आती है जो बहुत बेसिक है कि कौन कौन से प्लान है ये दुबई में चलते हैं. तो कॉमन पेमेंट प्लान की बात करूंगा. देयर आर मेनी इन दुबई एंड दुबई इज वेरी वेरी क्लियर इन इट. वो चाहते हैं कि भैया आप इन्वेस्टमेंट करो किसी भी तरीके से. नाउ द कॉमन पेमेंट प्लान्स आर 50-50, 60-40, 70-30, 80-20, 1% एंड पोस्ट एडवर्टाइजमेंट प्लान. So let's talk about the first one, 50-50. 50 during construction and 50% during possession. See guys, ये जो 50, 60, 70, 30 लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ है ना, इसमें 10% तो देखो आपको सबको देना है. Similar to India. प्री लॉन्च प्राइस आएगा. प्री लॉन्च प्राइस के साथ जैसे आपका रेरा इनका आता है, रेरा के बाद हर प्रॉपर्टी वहां पे रेरा को फ्री होल्ड लैंड भी है. बट फ्री होल्ड लैंड मेजॉरिटी ऑफ द एमिरेटीज वो कॉलेज जो दुबई के रेजिडेंट्स है ना या यूएई के रेजिडेंट्स हैं उन्हीं को लेने की प्राथमिकता मिलती है. मतलब दे आर द वंस हु कैन बाय दैट. ओके, तो अभी हम बात करेंगे बाकियों के लिए अदर देन यूएई कंट्री रेजिडेंट्स. हम लोगों के लिए क्या है, 10% पेमेंट करना है. उसके बाद 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, एज इन दे विल डिवाइड that 50% in the number of installments. It can be a quarterly one, it can be monthly, it can be 6 months as well. So that's the actual difference. My suggestion would be go for a quarterly or a 6 months payment plan. Okay, आपका जो 50% यानी 40% बैलेंस जो बचेगा, 10% पहले पे किया आपने डाउन पेमेंट के साथ में, उसके बाद 40% बचेगा उसको आप 6 महीने की इंस्टॉलमेंट डिवाइड कर लीजिए. राइट, आफ्टर 3 years नॉर्मली इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 3 years to 4 years रहता है. 3 years ही रहता है ज़्यादातर. उसके बाद जो 50% आएगा दैट विल कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोजीशन. जब पोजीशन मिलेगा तब 50% आपको पे करना है. राइट, नाउ सिमिलर स्टोरी 60-40 के आ गई, 70-30 के आ गई, 80-20 के आ गई. एंड दिस इज 1% पेमेंट प्लान. इट्स वेरी सब्जेक्ट टू अ वेरी लिमिटेड बिल्डर्स आउट देयर. आई कैन एक्सप्लेन दैट टू यू ड्यूरिंग आवर कॉल. देन द पोस्ट टाइम हैंडओवर पेमेंट प्लान इज आल्सो देयर. दैट्स नॉट सो पॉपुलर देयर बट देन few of the builders have it. Now the next obvious question is, भाई बहुत ज्ञान दे दिया विजेंद्र जी आपने, अब हमने करना क्या है. Now that's the obvious question which many of you has. So I'll answer that right now. The next question here is, how can we assist you? So मैं किस लिए आपकी हेल्प करूंगा या मेरी टीम किस चीज में आपकी हेल्प करेगी? Will not leave you in the middle. We'll assist you in property identification. We'll assist you in property negotiation. We will assist you in smooth transactions across, not just the booking but till the possession and afterwards as well if you want to resell it. Site visit support, either virtual or in person. You want to go and visit and see the property yourself, you can do that as well. If you want to have virtual tour of the property, that can be done on a Zoom call or a video call. Then the payment route instruction. So this is a very important point. Payment route structure. Majority of you are not even aware कि भारत के बाहर 1 रुपया भेजना भी कैसे है. ठीक है, और दुबई में रूल्स थोड़े अलग हैं. अग्रीमेंट्स क्या क्या होंगे, रिसीट्स क्या होगी, अथॉरिटी डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, रीसेल इन डिटेल ऑफ कोर्स, एंड देन द वीजा सपोर्ट. So let's say you want to go in there and see your property multiple times in a year, or you want to go on a golden visa, we can help you there as well. Okay, so all that you need to do is, see guys, यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ जो बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे. गोल्डन वीजा में एक लिमिट है. I think I mentioned that. If I did not, I'll just do that for you.
इसमें एक लिमिट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फॉरगेट अबाउट इट, आई डोंट वांट टू लर्न। मैं आपको ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। गोल्डन वीजा में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट काफी हैवी होती है, बट बहुत लोगों को ये लगता है कि इन्वेस्टमेंट आपको एक बार ही करनी है, इकट्ठी करनी है। जब तक जैसे बाकी कंट्रीज में क्या होता है, अगर मैं यूएस की बात करूँ या मैं यूके की बात करूँ या मैं सिंगापुर, मलेशिया, इन लोगों कंट्रीज की बात करूँ, तो जो भी वो $500,000 व्हाटएवर दे आस्क फॉर एज एन इन्वेस्टर वीजा, देयर यू हैव टू पे दैट मनी एट डे वन। आपको पूरा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है डे वन। दुबई बहुत चालाक है इस मामले में। वो कहता है, लेट्स से आपने गोल्डन वीजा का जो भी वैल्यू आएगा, करंट वैल्यू जो भी होगा उस टाइम पे, आप गूगल कर सकते हो, उतने वीजा की, उतने अमाउंट की आपने एक प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करनी, ठीक है। तो लेट्स से एग्जांपल लेके चलते हैं कि वहां पे 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, 1 करोड़, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल लेके चलते हैं कि 10 करोड़ की वैल्यू है, ठीक है। एग्जांपल है ये, डोंट कोट मी, गूगल इट योरसेल्फ, गोल्डन वीजा में क्या लगता है। तो गोल्डन वीजा में आपको, लेट्स से आपने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी फाइनल की, ठीक है, और 10 करोड़ ही गोल्डन वीजा की वैल्यू है, एग्जांपल। तो आपने जो फर्स्ट 10% जब आप दोगे, अग्रीमेंट तो आपका 10 करोड़ का हो गया, आपने 10 करोड़ दाम या 10 करोड़ रुपए उनको दिए नहीं है, अग्रीमेंट हो गया, लेकिन 10% 1 करोड़ आपने पे किया डे वन पे। जिस दिन आपने 10% पे कर दिया, आपका गोल्डन वीजा उसी दिन से है। वो आपको ये नहीं कहेंगे नहीं, जब तक आपका पूरा फंड यहाँ नहीं आएगा तब तक आपको गोल्डन वीजा नहीं। आप गोल्डन वीजा की सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हो। यू कैन बी अ प्रीमियम रेजिडेंट देयर, प्रीमियम एनआरआई देयर, राइट, फॉर द पीरियड ऑफ 10 years by simply starting to put 10% and of course not failing the rest of the payments. ऐसा नहीं कि आप 10% दे दो उसके बाद पेमेंट ना करो, बोलो गोल्डन वीजा चलता रहेगा, नहीं चलेगा। You got to adhere to the payment plans that they have given to you at that point. ठीक है, so that is a catch. ये चीज मैंने प्रेजेंटेशन में नहीं डाली थी, I thought of sharing with you guys. Now the next, so what next? अब नेक्स्ट ये है कि मैं अभी दुबई में हूँ, ठीक है, और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेरीफाइड एंड ऑथेंटिक रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज। की एंड स्क्वायर का कमिटमेंट क्लियर है, ठीक है जी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड ग्रोथ। यहाँ आप डायरेक्ट डेवलपर से बात कर सकते हैं, यू नो, आपके टाइटल क्लियर होंगे, लीगल सपोर्ट होगा, पेमेंट सेफ्टी के साथ होगी, ऑल ऑफ दैट विल हैपन। द लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप इज टू, you know that, didn't you? The logical next step here is to contact us. Contact us for further assistance in booking. देखिए, मैं इनवाइट कर रहा हूँ सीरियस इन्वेस्टर्स को, HNIs को, मेरे इंडियन क्लाइंट्स को, मेरे आउट ऑफ इंडिया के क्लाइंट को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, सीरियस इन्वेस्टर्स और HNIs को। मैं उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ जो मुझ में ट्रस्ट करते हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज में ट्रस्ट करते हैं। दुबई में मैंने एक वेट लिस्ट बना रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग अ वेटिंग लिस्ट फॉर दुबई इन्वेस्टमेंट, राइट, एंड पीपो बेसिस पे, फर्स्ट आउट बेसिस पे आई विल अप्रोच टू यू गाइस and contact and ask your aspirations. We'll create a set by set, one by one strategy for each one of you, and if you proceed for the investments. तो इस वेट लिस्ट के बाद क्या होगा, वेट लिस्ट के बाद हम बात करेंगे, and you will get an exclusive one-on-one session with me or my team member. Then we will help you guide and create a strategy plan for you. एक VIP access होगा, and then you will have a exclusive site visits as well, virtual or personal support. राइट, ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, आप सिंपली चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, fill in the form and mention in the comment box Dubai. That's it. Just mention the word Dubai, DUBAI, in the comment box along with the filling the form for me to get back to you. Right? Thank you. So these are details that you already have. If you don't, kindly copy them for yourself. So thank you very much. Thank you for listening to me up till here. I know there were many questions that are still unanswered in your mind, and I can read that for now. I know my audience; they are very, very intelligent. If there is anything that you want to know more apart from what I covered here, or if you feel like there is anything that I did not cover in the detail, feel free to come back to me and I'll help you out. Thank you so very much for your time. Subscribe.